I think we have discussed, but let's talk about dual aspects as a very simple. Every principle is having the double effects, or as a double entry system, every transaction is having the two aspect. It's talk about the double effect of the transactions or the dual aspects of the transactions. Dear students, pay attention. Dual aspects or duality principle. Now, what does it mean? According to the dual aspects concepts, every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit and the credit, or of equal amount. Simply stated, for every debit there is a credit or equal amount in one or more account. It is also true vice versa, that is capital is equal to claim of outsiders is equal to asset. Now this principle or this equation, sorry, this equations we would be talking about, this we would be discussing in future in form of a complete chapter called accounting equation, है ना. हम इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे इस इक्वेशन को हमारे आने वाले एक टॉपिक में, जिसका पूरा टाइटल है अकाउंटिंग इक्वेशंस. एक पूरा चैप्टर है दैट इज यूज्ड टू असेस फॉर 3 मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस. सो दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट ड्यूल एस्पेक्ट्स और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल. देखिए इसका बेस बहुत सिंपल है. इसका कहने का मतलब यही है, या फिर इस प्रिंसिपल का मीनिंग यही है कि इफ यू आर रिसीविंग समथिंग यू वुड बी गिविंग समथिंग, इफ यू आर गिविंग समथिंग यू वुड बी रिसीविंग समथिंग. So you need to record both the aspects, what you have received and what you have given, or what you have given and what you are going to receive. Duality principle or dual aspects principle or double entry principle. Hopefully it is clear. Next, revenue recognition concept. Revenue recognition principle is also a similar principle, students. Accrual assumptions. As a similar principle of accrual assumptions, you can just see this. According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into the obligations to receive the amount has been established. अब इस थोड़ा सा technical terms में है, so we need to understand it. What does it mean? Revenue recognition concepts, what does it mean? That it doesn't matter when you are going to receive the money for any transactions, but that's matter when you have made an obligations to receive the money, or when you have entered in a transactions. Please do understand this. है ना, this is very important. मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए आज आपने 50,000 रुपीज का गुड्स सेल किया है और उसमें से केवल 20,000 रुपीज आपको रुपए मिल गए हैं, 30,000 अभी नहीं मिले हैं, let's say. Okay, that businessman or that retailer is in your contact and he he's your regular customer, and you used to offer him a credit sell. Then he would be paying this remaining amount after 1 month or after 3 months, let's say. Okay, but you are going to record the sell for complete 50,000 here. आप पूरे 50,000 का सेल आज ही रिकॉर्ड करने वाले हो, because this is the sell for the today, और आज आपने इसको सेल किया है and it is sure that 50,000 rupees you will receive. Though 20,000 you have received and 30,000 you would be receiving maybe after a month, or maybe after 6 months, or maybe after a year, but you will receive. So this is the revenue for the year, revenue for the accounting year in which it occurs, that is today. That means to say the current accounting year, let's say is 21-22. तो ये 21-22 का इनकम हो जाएगा क्योंकि ये इस ईयर में रिकॉर्ड हुआ है. अब ये पैसा अगर मान लो अभी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है, it will receive after 6 months or after a year. So the settlement is a secondary thing, but this is the income of current accounting periods. Hopefully you're able to understand. If you have any questions in this, let me explain it again, but make sure that you are having the doubt in this. And the very, very important principle, last what we are going to discuss, dear students, just pay attention and try to understand this very carefully. इसको ध्यान से और बहुत अच्छे से समझे हम लोग. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल है,
लेकिन जनरली स्टूडेंट्स इसको नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. Verifiable, it is clear by its title only, students. It is clear by its title only. That is, every transaction must be verified with some supporting documents. Please do understand this. I'm reading for you. The verifiable objective concepts hold that accounting should be free from personal bias. Measurements that are based on the verifiable evidences are regarded as objective. It means all accounting transactions should be evidenced and supported by business document. Please do understand. It must be supported by the business document. These supporting documents are cash memo, invoice, sales bills, etc., and they provide the basis of accounting and audits. Now, students, you need to understand. देखिए इसमें क्या होता है, आप इसको समझे. You need to understand this, dear students, कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, है ना, सो वी नीड टू गिव द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस. लाइक हमने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, सो वी डिपॉजिटेड थ्रू अ वाउचर. देखो 10,000 रुपीज आपने बैंक में दे दिए, लेकिन आपके पास में प्रूफ क्या है ना. सो इफ योर पीपल रिमेंबर, इफ यू हैव एवर प्रैक्टिस दिस, है ना, कभी आपका काम पड़ा हो कि आप लोगों ने ये इस तरह की ट्रांजैक्शन करने का काम किया हो कभी. सो व्हाट हैपेंड कि हम लोग जब बैंक में जाते हैं, उसकी एक डिपॉजिट स्लिप डिपॉजिट करते हैं. सो इट इज हैविंग द टू पार्ट, है ना. देखा है कभी आपने? हैव यू ट्राइड एवर? टेल मी, हाउ मेनी आर देयर इन द क्लास? क्या क्या होती है डिपॉजिट स्लिप? कैसी होती है डिपॉजिट स्लिप? दैट इज बैंक, है ना. अरे बार बार ये क्यों ओपन हो रहा है? बैंक डिपॉजिट स्लिप. कहाँ गया फोटो? जस्ट अ मिनट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सो व्हाट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो कि 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड टू द बैंक, देन आप उसके साथ में एक रेफरेंस नंबर देते हो उसको कि भाई 23 नंबर का वाउचर है वो, है ना. 23 नंबर का वाउचर है, जहां पर जाकर के हम इस ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, है ना, वी कैन वेरीफाई कि 10,000 रुपीज हमने यहाँ पर लिखा है, एंट्री बनाया है हमने हमारे बुक ऑफ अकाउंट में कि 10,000 रुपीज दैट वी हैव डिपॉजिटेड टू द बैंक. सो इज देयर एनी एविडेंस? यस, दिस इज द एविडेंस.
So importantly, we need to understand these supporting documents are cash memo, invoice, sales bill, है ना. It can be considered anything. हमारा एक पूरा चैप्टर है ना. हमारी बुक में चैप्टर नंबर 7 दे रखा है ना. रेफरेंस में शायद चैप्टर नंबर 7 ही है ये. यस, origin of transaction, source document and preparation of voucher, चैप्टर नंबर 7. आप अपनी कॉन्टेस्ट में देखोगे बुक में तो उसमें आपको ये सारी चीजों की डिटेल्स मिलेगी कि इनवॉइस कैसे होते हैं, बिल्स कैसे होते हैं, ये सारी कुछ चीजें. एंड बिसाइड दिस, इफ यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट प्रैक्टिकली, कि अभी हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हमारे अगर मान लीजिए सपोज अ ट्रांजैक्शन इज टेकन प्लेस इन कैश, देन वी वुड बी हैविंग अ कैश मेमो और अ क्रेडिट मेमो, इनवॉइस. हमने कोई कार्ड से पेमेंट हमने किया है तो उसके बदले में भी हमें एक बिल मिलता है ना. सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट. Basically, it is divided in 3 parts. That is for the source document, voucher, and the accounting voucher. So, what does it mean? That every transaction need to have a evidence. Maybe a transaction of rupees 10 or 100 or a lakh. So this is a verifiable objectivity concept कि हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाना चाहिए कि जब उसका हम एट द एंड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मार्च क्लोजिंग, कि जब मार्च क्लोजिंग के समय पे आपकी अकाउंट्स बुक्स ऑडिट की जा रही हैं तो उस समय ये हो कि वो सारे एविडेंसेस दैट शुड बी देयर एंड इट कैन बी वेरीफाइड ऑल द वाउचर्स विद द ट्रांजैक्शन एंट्रीज. So this we talk about this accounting principle, students. If you are finding any transaction difficult or if you have any doubt, then you can just tell me कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, हमें इसमें कोई डाउट है. Yes, please. How many are there in the class? Whatever Devansh, whatever 4-5 students, Devansh, Manan, Mastan sir, Naman, Nandana, Samrit Kaur. Is this topic clear to you people? ये आपको प्रॉपर समझ में आया है? Let me tell you one more thing, students. है ना? Let me tell you one more thing, Manan and all students, कि ये एक टॉपिक आपकी पूरी बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. Now we would be talking about 100 times, more than 100 times about this principle. इस चैप्टर में आकर के हम लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, जब हम टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, तो कई बार इनके रेफरेंसेस आते हैं उसमें. जैसे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना, तो किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम क्यों डेप्रिसिएशन लगाते हैं. कोई बता सकता है मुझे? टेल मी. एक्चुअली तो ठीक है, हमें मालूम है, देखो समझो मैं बात जो बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें मालूम है कि हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, साल भर वो मोबाइल यूज होएगा, 2 साल वो मोबाइल यूज होएगा, उसके बाद में उसका वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगा. दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज अंडरस्टूड कि हम जो कार यूज कर रहे हैं, हमेशा उस कार का वैल्यू, अगर हमने 10 लाख की परचेस की तो वो कार 10 लाख की नहीं रहने वाली है. हर महीने, हर साल उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, मार्केट वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू कम होता जा रहा है, तो व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड दिस इन बुक ऑफ अकाउंट? हमें उसका जो एंटिसिपेटेड वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? कैन एनीवन टेल मी? यस, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस? कम ऑन, ट्राई. देवांश, मनन, मस्तन सर, नमन, समरीत. जब भी हम उस कार को बेचेंगे तो पता पड़ ही जाएगा कि कितने की वैल्यू है. हमने खरीदी थी 10 लाख की, मार्केट वैल्यू 7 की चल रही है या जो भी है, तो उतने में हम उसको सेल कर देंगे. तो हमें हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की क्या जरूरत है, या मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगाने की क्या जरूरत है? कैन एनीवन टेल मी? सर शायद उसकी वजह से वो मशीन या फिर बिल्डिंग की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब उसके अकाउंट से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. हाँ, वही, उसकी अकाउंट्स की वैल्यू कम होती जाएगी. वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है, उसकी वैल्यू तो कम होगी, दैट इज श्योर. लेकिन अगर हम उसको अलग से डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, अगर हम हर साल उस पर डेप्रिशिएशन नहीं भी लगाते हैं, तो भी उसका वैल्यू तो प्रैक्टिकली कम हो ही रहा है. और जब भी हम उसको सेल करेंगे तो हमें कम वैल्यू ही मिलेगा, तो अभी भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा. तो उसको हर साल हमें रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? यस प्लीज.
इस क्वेश्चन का जवाब इन प्रिंसिपल्स में छुपा हुआ है. If anyone can answer, if you have understood this principle in the right sense, or I answer. इसका जवाब है प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. Now, what is prudence or conservatism principle? Can you tell me? We need to be ready for all the anticipated losses or anticipated expenses. हमें पता है कि हमारी जो मशीन है या हमारी जो कार है, हमारी जो प्लांट है, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है. जब हमें मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब 10 लाख रुपीस की कार के बदले में हमें हो सकता है कि 2-3 लाख रुपए मिलेंगे. हमें मालूम है कि वी आर गोइंग टू सफर अ लॉस ऑफ रुपीज 5 lakh or 7 lakh rupees or something like. Then, as per the prudence principle, we need to be ready for those anticipated losses and we need to make provision for those losses. अब समझे यहाँ पर समरी. Very well, you have tried. अब अगर मान लीजिए हम उसका प्रोविजन नहीं बनाते हैं, if you are not making the provision for those losses every year, then what will happen? What will happen कि पर्टिकुलर किसी एक साल में हमें अचानक से 7 लाख रुपीस का लॉस हो जाएगा, क्योंकि तब हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी इन बुक? 10 लाख रुपीस. जबकि उसके बदले में हमें मिलेंगे कितने? 3 लाख रुपीस. तो फिर उस 7 लाख रुपीस को आप कहां लिखोगे? लॉस में. मतलब कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपको अचानक से 7 लाख रुपीस का लॉस हो गया. तो क्या वो लॉस उस पर्टिकुलर ईयर का है? टेल मी. Is that loss is of particular that year? Tell me yes or no. जल्दी से बताइए कोई. Come on. कैसे हो सकता है बेटा उस पर्टिकुलर ईयर का लॉस? नहीं. जब आप उस हाँ yes speak up please. सर उसकी वैल्यू तो हर साल कम हो रही थी ना. वेरी गुड समरी. जब उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही थी तो वो फिर लॉस उस पर्टिकुलर ईयर का कैसे हो सकता है? जब उस असेट्स को आपने हर साल यूज किया है ना. लेट्स से कि आपने 2015 में एक कार परचेस की और 2020 में आप उस कार को सेल करने जा रहे हो. 2015 में आपने नमन, आप ये क्वेश्चन भी सुन सकते हो, फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. 2015 में आपने कार परचेस की 10 लाख रुपीस की और 2020 में आप उस कार को सेल करने वाले हो, है ना. तो वो जो कार आपने 2015 में 10 लाख में परचेस की थी, अब आप 2020 में जब आप उसको सेल करने जा रहे हो तो उसके बदले में आपको 4 लाख रुपीस मिल रहे हैं. लेट्स से एग्जांपल मे बी एप्रोप्रिएट और नॉट. तो क्या ये 6 लाख रुपीस इज अ लॉस फॉर 2020? दैट इज है ना. ये जो 6 लाख रुपीस का लॉस है वो 2020 का लॉस नहीं है. ये लॉस है 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का एंड 20 का. Now what we have to do, we have to spread the cost of that the value of car what has been used during this 5 year. In 5 year में जो हमने उनको यूज किया है, we'll have to spread it on all the accounting years during what it has been used. So depreciation is not a method of valuation of asset. It is a process to spread the cost of the assets over the different accounting year when this asset has been used. That's why we charge the depreciation in terms of 3 principle. पहला prudent principle, to be ready for the anticipated losses. हमें पता है लॉस होने वाला है तो उसके लिए हमें अरेंजमेंट करना है. देन मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मस्ट मैच विद द अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. तो ये 6 लाख रुपीस इज नॉट लॉस फॉर द 2020. या फिर हमने जो कार 2015 में खरीदी थी तो 10 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस 2015 के लिए नहीं था कि 2015 में हमने कार परचेस की तो 2015 में हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गया. दैट एक्सपेंसेस विल आल्सो स्प्रेड ओवर ऑल द 5 ईयर और टिल द लाइफ ऑफ द कार इन बिजनेस. हमारे बिजनेस में वो कार कितने समय तक रहने वाली है और वो कैसे यूज होने वाली है, तो उसको हम लोग स्मॉल, उसके जो लाइफ है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड दैट वुड बी रिकॉर्ड every year in book of accounts. And the third and the very important principle, पहला हो गया हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल, सेकंड हो गया हमारा मैचिंग प्रिंसिपल एंड थर्ड दैट इज
revenue recognition or accrual assumptions. Revenue recognition or revenue recognitions. So that is कि जिस ईयर का एक्सपेंसेस है उसको उस पर्टिकुलर ईयर में हमें रिकॉर्ड करना होगा, जिस ईयर का इनकम है उसको उस पर्टिकुलर ईयर में हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो 6 लाख रुपीस के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो पर्टिकुलर एक साल के नहीं है, या फिर 10 लाख रुपीस जो हमने कार खर्च खरीदने के लिए हमने परचेस किया है वो पर्टिकुलर 2015 का एक्सपेंसेस नहीं है, वो नेक्स्ट 5 ईयर के, लेट्स से 5 ईयर इज द लाइफ ऑफ द कार अज्यूमिंग। तो उस 5 ईयर में अज्यूम होंगे कि हर साल के ऊपर 2 लाख रुपीस का उसका वेटेज जाएगा, हर साल के ऊपर उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन जाएगा, और लास्ट में जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा दैट वुड बी फर्दर राइटेड ऑफ। तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल बताया कि हाउ दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल बी यूज इन द प्रैक्टिकल सेंस, है ना। किसी को लग सकता है कि कितने बोरिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, समझ में क्या पढ़ना है इसमें, हाँ ठीक है इस तरीके से होता है। सो 100 of time we would be talking about this accounting principle, but we would be able to understand when we would be having the right understanding with this accounting principle, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक है। So hopefully you have understood this. If you have any doubts in this, students, let me have the idea. अब अपनी बुक में देखें, इफ यू हैव दिस रेफरेंस बुक पेज नंबर 3.8, अपनी बुक में पेज नंबर 3.8 देखें स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में वहां पर दे रखा है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन इट। Is it visible to you, students? Yeah. है ना? So, sorry. हाँ, it is already in vertical. अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, I am just trying to highlight this accounting standard, this page only. Is it fine? Visibility is okay? हाँ. So this accounting standard, students, please try to read and try to understand this. ये आपकी बुक में पेज नंबर 3.8 पर दे रखा है, तो इसको आप पढ़ें, समझें, आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की why the world need the accounting standards. That's why the initially in 1973 the first International Financial Reporting Board, or means formerly known as the International Accounting Standard Committee, has been set up, and they have started making the principle what is accepted worldwide, what are required to accept worldwide, so that we can think about the global business and international फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये टॉपिक अभी हमें आगे इसको स्टडी करना है, हमें इसको पढ़ना है ना। यू मे बी थिंकिंग इट कि might be you will feel कि this is a general information, but obviously students, this information is very much needed, because this is going to give you a right approach toward the subject. आपको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको सही मायनों में समझ में आएगा कि हम लोग ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाई इट इज नीडेड, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बने हैं, किस तरीके से आए हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी हैव डिस्कस्ड, बट आगे ये सारी चीजें क्या है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट द credible financial statements are prepared. We would be talking about this all the things. This concept of accounting standard, और फिर इसके बाद में जब आप आगे अपनी बुक में बढ़ते हो, so this objective of accounting standard, utility of accounting standard, limitation of accounting standard, since it is a main principle.
since it is main principle, and then we would be talking about the international financial reporting standards. Intensive theory is there in this chapter, students, but this you need to understand that this is a very, very important. This chapter, this theory base of accounting, अगर आप उसको you will try to understand chapter की theory base of accounting, on what theory or on what basis the accounting subject is standing, and your right approach toward it. Right approach toward it is very much needed. And it's not about only the debit and credit and general entry and the ledger entry. It is about much more. And what is the importance of it? Okay, so please go through it. Abhi